Hello friends, how are you? My name is John and you are looking my YouTube channel Technical John. Dear friends, I hope understand I tell you the different topics and much more videos and I upload daily videos and online earning money on internet. And this is today my video topic and tax broker website. And tax broker website is a content writing website, and you go to the Google main page and write the tax broker website and open the first page and enter the website. And number one, the link tax broker website, and this is a next setup. I need content and I write content and expert center, and this is a next page, sign up and login. And you go to the sign up page, the first enter the new interface, open this page and the right first box and write your right name and username, and this is the first enter your email, and in the fourth box and write the password, and fifth box write the confirm password, and the next button enter your number and enter the sign up button, and you go to complete guidance, and this is a button of tax broker login website. And the next setup, with the tax broker you the get paid writing online, and good work pays off, and better you write than more and can you complete earn your system. And the next setup, Yoast and Staples and eBay and Auto and iPostPerfect and I18. What does the tax broker your system? Tax is a tax broker legit website. Yes is a tax broker legit platform, is a connecting freelancer with the work since of 2025, and we maintain your positive reputation among the clients because and enjoy the quality of your system and insurance of the payment and assignment you complete. Give the we have the 100 content writing, this is a page, and 1000 opportunities our system, and make money of content writing like eBay system and Staples and wholesale and more many ways. We are the thankful thousand and freelancing company. You can extra of your journey start the writing of text broker website, and you have the resource of your system and refreshing and your mind we skill to the up step for step on the different ways. And as we went, you go to the many more writing and go to the clients gets optimization content and slides of benefits. It is a tax broker and opportunities for you. Whenever the noise and better the starting and establish the author system. Tax broker and offered way to get the paid and writing. We provide the platform and where you skill and recognized
and the compressed and according if you are to looking great and make money on this slide and even full-time opportunities we would you have are some great reason and to the start of your tax broker site system. And tax broker is a give you fast and reliable and cooperative ways earn money and by writing with your system. Get paid article time. We understanding if you can't life busy and come up of the consciously work the reason responsibilities and that we provide the offering and searching and flexibility. We can wear the right and the tax broker and believe the getting what are you put we have and work anywhere week 14 in more and beauty including and tax broken if you control much more content writer and when you write there is so limit much more on the platform and you can the writing about insert you and writing the allows and to make about this and understand can with the geniusly enjoy I on dear you with the and topics and redirectly so much and expertise and other system and tech broken websites and matching where to the concert for you writing the pairy topic of journal and topics the ordinary of your pick your system. I hope understand writing the system and earn money online at home. I completely tell you and much more videos. Subscribe my YouTube channel and press the bell icon button. Thank you so much. 3, 2, 1. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। आज हम जा रहे हैं स्नूकर खेलने क्योंकि दो लड़कों ने हमें चैलेंज किया है। उसके बाद एक रेस्टोरेंट है जो आपको आगे जाके पता लगेगा कौन सा रेस्टोरेंट है, उसका रिव्यू करना है और आपको इंशाल्लाह इस व्लॉग में बहुत अच्छा लगेगा और मुझे बताना कि मेरी कौन कौन सी गलतियां हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो हम सुधारेंगे। शुक्रिया। अभी हम जिम करने हैं, जिम करने के बाद इंशाल्लाह स्नूकर खेलेंगे। दो लड़कों ने हमें चैलेंज किया, वो भी अभी आपको दिखाएंगे आगे और रेस्टोरेंट में भी चलेंगे। अच्छा सा रिव्यू भी करना था, उन्होंने हमें इन्वाइट किया था। चलो आगे मिलते हैं इंशाल्लाह। तो अभी आपका जिम का मेरा डेली का रूटीन है जिम करना और हम आपको बताएंगे कि सही कौन है कौन से दिन हमारे Bunu anlatabilir mi? Bas. Burada hadi kendine. हाँ भाई, तो उनके कॉल पे कॉल आ रही है कि भाई कहाँ रह गए स्नूकर का चैलेंज देके घूम ही नहीं हो गए। हमने कहा बेटा आ रहे हैं, आप लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट करने हैं। जो वो दो लड़के अभी वो पर्सनल है, उनके उधर ही जाके उनका फेस रिवील करते हैं कौन है जो हमें चैलेंज कर रहे हैं।
तो आपको वहीं पे जाके दिखाते हैं उनका सॉफ्टवेयर अपडेट वीडियो आपको लाजमी दिखाएंगे। फिलहाल तो हम यहाँ पे पहुंच गए कैफे जावल ओवर ब्रिज पे, हमें डी मार्शल जाना है। ये कैफे जावल ओवर ब्रिज पे इस वक्त हमें जाना है डी मार्शल, और आपको वहीं जाके ना इंशाल्लाह वीडियो भेजते हैं लाजमी। भाई ये रहे वो दो लड़के जो हमें चैलेंज कर रहे थे, ये हैं वो दो लड़के, इनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। कुर्बान भाई कैसे इनका हम सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। Shot. आप फात भाई की गेम देख सकते हैं। तो यार जबरदस्त फात भाई, ब्लैक फैसला है दोस्तों। फात भाई शॉट खेलने लगे हैं और ये हम जीत गए। 1-0 हो गया, 3 पे गेम है। साजिद भाई के जरा एक्सप्रेशन देखे। इस भाई की बड़ी जबरदस्त गेम है वैसे। कुरान भाई क्या कहना चाहेंगे अभी आप? भाई ये गेम तो पूरी तरह हार रहे हैं हम लोग। ओह 34 हो गए भाई के पॉइंट, 34 इन दोनों के हो गए। गेम हार रहे लग रहा है, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह जीत जाएंगे। नहीं तो गेम 3 तक जाएगी, कोई मसला नहीं, हम फुल तैयार हैं। भाई साजिद भाई बहुत अच्छा खेल रहे हैं गेम। अभी ये फाइनल लग गया है, देखते हैं क्या बनता है। और भाई अभी 1 वर्सेस 1 हो गया, ये 3 हो गया गेम। साजिद भाई ने हमें 40 पॉइंट से ये गेम हराया था। इंशाल्लाह अब 12 पॉइंट हमारे, हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह। भाई अभी 6 पॉइंट है साजिद भाई के और फरहान भाई के। ब्लू पे गेम है, 3 है। ओ शॉट, इसी पे पैसे हैं शायद भाई, इसी पे पैसे हैं। कोई नहीं, सेफ हो गया, सेफ हो गया। अभी रिएक्शन देखते साजिद भाई की। साजिद भाई कितने पॉइंट थे आप, कितने रह गए? 1 पॉइंट, कोई बात नहीं, वो भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ब्लैक भी बाहर है, खुले में है। ओ फरहान भाई ने भी, अभी मेरी बारी है इंशाल्लाह। ये शॉट यार फात भाई, और ये दोनों के एक्सप्रेशन देखें जरा, इन्होंने अपना कैमरा निकाल लिया है। अब ये जब हार रहे हैं तो इन्होंने अपना कैमरा निकाल लिया दोस्तों। तो नहीं गया, आपकी शॉट है, खेले खेले आप भाई। ये सीधी ये इनके हाथ भी नहीं गया। अब मेरी बारी। वेल प्लेड यार फात भाई। भाई बताओ क्या कह रहे हो? अभी इनका रिएक्शन है, कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? 3 इन दोनों भाई को लग गया, 3 लग गया इन दोनों को भाई। ये भी पेमेंट करवा रहे हैं, ये लोग अभी आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, पेमेंट करवा रहे हैं अभी ये लोग भाई। अभी गुलाम का सब्जी टेस्ट करने वाले हैं जिन्होंने इनवाइट किया था। सब्जी चेक कर रहे हैं, माशाल्लाह बेहतरीन। ये तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बताएं फात भाई कैसा टेस्ट है? इनके पैसों से खाने में क्या भी ये हारे हुए इनका एक्सप्रेशन देखे जरा। राज की बात क्या बात है, इनके पैसों का खाने का भी अपना मजा भाई। दिखा उसके चारों दिखाए बेहतरीन। साजिद भाई तो ऐसे मुंह का एक्सप्रेशन दे रहे हैं जैसे रोने वाले हो। कोई बात नहीं भाई। अभी कैफे जावल पे चलते हैं, मीठा लेना है थोड़ा सा। गाजर हलवा माशाल्लाह बेहतरीन, गाजर हलवा, खीर, ये लेना है थोड़े पार्सल। बाद में क्या खा रहे हैं बताया भी नहीं है। और हम लोग का भी कर रहे हैं यहीं पे। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। कोई गलती हुई है व्लॉग में तो वीडियो में तो बताएं, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सुधारेंगे। अल्लाह हाफिज़।
muscle cars, raw power, aggressive styling, and a soundtrack that makes your heart race. In today's video, we're diving into the world of high-performance machines, showcasing the 8 muscle cars with the most powerful engines that have earned their place in automotive history. The 1969 Chevrolet Camaro ZL1 stands as a titan in the muscle car world. With a 427 cubic inch V8 engine designed for racing, this car boasts a whopping 430 horsepower, though some experts believe it could produce even more. This engine's raw power allows the Camaro ZL1 to accelerate from 0 to 60 miles per hour in mere seconds, cementing its reputation for speed and performance. Beyond its powerful engine, the ZL1 features a sleek, aggressive design that turns heads on both streets and racetracks. Its combination of strength and style makes it a beloved icon among car enthusiasts. Even today, the 1969 Camaro ZL1 is celebrated for its timeless appeal and unmatched performance, ensuring its place in the pantheon of legendary muscle cars. The 1970 Plymouth Hemi Cuda is a legend in the muscle car community, known for its incredible power and bold design. Under the hood, the Hemi Cuda boasts a 426 cubic inch Hemi V8 engine, producing 425 horsepower. This engine allows the car to reach 60 miles per hour in just over 5 seconds, a remarkable feat for its time. The Hemi Cuda is not only about performance, but also aesthetics. With its sleek lines, bold grille, and eye-catching colors, the sound of the Hemi engine is another defining feature that car lovers appreciate. Whether for its racing performance or street presence, the 1970 Plymouth Hemi Cuda remains one of the most iconic muscle cars, cherished by both racers and collectors for its style and raw power. The 1968 Ford Mustang 428 Cobra Jet is a standout in the muscle car world. Its 428 cubic inch V8 engine delivers around 335 horsepower, though many believe it produces even more. This power allows the Mustang to accelerate from 0 to 60 miles per hour in just 6 seconds, making it perfect for high-speed driving. The car's bold design, with its sleek body and aggressive stance, adds to its appeal. The Cobra Jet was designed for speed, and its performance on the streets and racetracks solidified its reputation. Today, it is still celebrated by enthusiasts for its blend of power and classic muscle car aesthetics, symbolizing the golden era of American muscle cars. The 1971 Dodge Charger RT is known for its strong engine and eye-catching design. Equipped with a 440 cubic inch V8 engine, the 446 pack produces 385 horsepower, enabling the Charger RT to reach 60 miles per hour in about 6 seconds. This raw power made the Charger a favorite among those who love speed. Its aggressive front grille, sleek body, and hidden headlights give it a distinct look. The 1971 Charger RT combination of bold styling and strong performance makes it a true classic in the muscle car community. Car enthusiasts continue to admire it today for its blend of power and design, making it one of the most memorable muscle cars of its era. The 1970 Chevrolet Chevelle SS454 is a powerhouse in the muscle car world, famed for its raw strength and striking design. At its core is the LS6454 cubic inch V8 engine, which produces an impressive 450 horsepower. This immense power allows the Chevelle SS454 to accelerate from 0 to 60 miles per hour in about 6 seconds, making it a top performer of its time. The car's design features bold racing stripes and a cowl induction hood, enhancing its aggressive look. Built for both speed and style, the Chevelle SS454 remains a favorite among muscle car enthusiasts. Its combination of power, performance, and iconic design
ensures its place as one of the most admired muscle cars ever. The 1969 Pontiac GTO Judge is a legendary muscle car, recognized for its powerful Ram Air 400 cubic inch V8 engine, delivering around 370 horsepower. This engine allows the GTO Judge to go from 0 to 60 miles per hour in just over 6 seconds. Known for its speed and performance, the GTO Judge became a favorite among racers and car enthusiasts. Its design is equally bold, featuring vibrant colors, a wide stance, and distinctive graphics. The rear spoiler and Rally 2 wheels add to its sporty look. The GTO Judge's mix of high performance and standout design has made it a lasting icon in the muscle car world, admired for its power and aggressive aesthetics. The 1970 Oldsmobile 442 W30 is a standout muscle car, known for its 455 cubic inch V8 engine, which produces 370 horsepower. This engine propels the car from 0 to 60 miles per hour in just under 6 seconds, making it incredibly fast for its time. The W30 version of the 442 was built for high performance, attracting those who love speed and power. Its design features a bold and muscular look, with a fiberglass hood, air scoops, and unique W30 badging. The combination of performance and stylish design makes the 442 W30 a favorite among car enthusiasts, still celebrated today for its power and timeless appeal in the muscle car community. The 1969 Dodge Super Bee A12 is a muscle car legend, equipped with a powerful 440 cubic inch V8 engine known as the 446-pack. This engine produces around 390 horsepower, allowing the Super Bee A12 to accelerate from 0 to 60 miles per hour in just 5.3 seconds. The car's aggressive design includes a fiberglass hood with a large scoop and a wide stance, adding to its powerful appearance. Built for speed and performance, the Super Bee A12 became a favorite among racers and muscle car fans. Today, it remains a symbol of the golden era of muscle cars, admired for its raw power and iconic style. Which one is your favorite? Let us know in the comments below, and don't forget to hit that like button, subscribe, and turn on notifications so you never miss out on more high-octane content. Thanks for watching, and we'll see you next time. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आप लोगों को डेली हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। अपनी वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो जो हमारा टॉपिक है वो ये होगा कि हाउ यू कैन लर्न ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। किस तरीके से आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग को लर्न कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि लर्न करना इम्पोर्टेंट होती हैं। तो उसको हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैं टाइप कर लूँगी हाउ टू लर्न ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, ठीक है। यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया है। अब यहाँ पे 7 स्टेप्स हैं टू बिल्ड योर स्किल, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं कि क्या 7 स्टेप्स हैं, कौन से 7 स्टेप्स हैं जो कि हेल्प आउट करेंगे आपको एक अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग बिल्ड करने में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि लर्निंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैन बी एक्सीलेंट स्किल, ठीक है। ये एक एक्सीलेंट स्किल हो सकता है वेदर यू वांट टू लैंड अ जॉब। अगर आपको एक जॉब लैंड करनी है एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर और बिकम अ वेल राउंडेड, ठीक है। या तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, ठीक है, या एक वेल राउंडेड कम्युनिकेशन आप चाहते हैं, वो भी प्रोफेशनली, ठीक है। तो ये चीज़ें चाहते हैं तो आप इजीली ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, ठीक है।
और आगे वो कहता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ अ बोर्ड क्रिएटिव डिसिप्लिन, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बने तो उसके लिए आपको चाहिए होगा कि आप एक बोर्ड क्रिएटिव डिसिप्लिन आपके अंदर हो, ठीक है। डैट इनकम्पासेस मैनी टाइप्स, ठीक है, जो कि इनकम्पासेस करता है मैनी टाइप्स को ऑफ विजुअल डिज़ाइन, ठीक है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा विजुअल डिज़ाइंस देखने को मिलते हैं एंड कम्युनिकेशंस, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशंस देखने को मिलती हैं फ्रॉम डिज़ाइनिंग ब्रांड लोगोज टू टचिंग अप फोटोग्राफर्स, ठीक है। इस तरह के डिज़ाइन ब्रांड लोगोज हों जो कि आप टचिंग अप कर सकते हैं फोटोग्राफर्स के लिए। आगे वो कहता है कि कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ ग्राफिक डिज़ाइन टू कम्युनिकेट टू अदर कस्टमर और यूज़र्स, ठीक है। अदर कस्टमर्स के लिए और यूज़र्स के लिए हेल्प आउट करता है आपको कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। और यूज़र व्हाट टू डू एंड हाउ दे आर, ठीक है, और किस तरीके से आप करेंगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ अ स्किल नीडेड इन क्रिएटिव फील्ड सच एज ब्रांड मार्केटिंग, ठीक है। ये एक ऐसा स्किल है जहाँ पे आपको फील्ड्स होती हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स मिलती हैं, क्रिएटिव फील्ड्स मिलती हैं जैसे ब्रांड मार्केटिंग जिसमें आ जाती है, ठीक है। टू गवर्नमेंट एजेंसी, जहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसी होती है, डैट नीड इंफोग्राफिक्स, टू यूएक्स डिपार्टमेंट दैट नीड यूआई डिज़ाइनर्स टू क्रिएट वेब पेजेस, ठीक है, जहाँ पे आपको यूआई डिज़ाइनर्स मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पे आप क्रिएट वेब पेजेस कर सकते हो, ओके। तो ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ आप देखते हो कंटेंट मीडिया का जो भी होता है वो ग्राफिक डिज़ाइनर के थ्रू ही होके जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहता है कि इन दिस आर्टिकल वी विल गाइड यू थ्रू द स्टेप्स टू लर्न एसेंशियल ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टेप्स जो हैं वो दिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल हैं, मतलब ज़रूरी भी हैं और बिगिनर लेवल के हैं। कौन कौन से हैं? ग्राफिक डिज़ाइन स्किल्स एंड पॉइंट यू टूवर्ड रिसोर्सेज फॉर किक स्टार्टिंग योर जर्नी, ठीक है। और ये जो रिसोर्सेज हैं ये टूवर्ड आपको लेके जाते हैं किक स्टार्टिंग जर्नी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहता है हाउ टू लर्न ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है, किस तरीके से ग्राफिक डिज़ाइन आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो लर्न ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट्स विद द बेसिक, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बेसिक लेवल से स्टार्ट हो जाती है, लाइक अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, ठीक है। हर चीज़ के कोई ना कोई प्रिंसिपल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करने लगे हो, कंप्यूटर है, ठीक है, उसके अपने अलग प्रिंसिपल्स हैं। आप एसईओ कर रहे हो, उसके अलग प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की गाइड आपको मिलती है। वी विल टेक यू थ्रू हाउ टू लर्न दी स्किल्स, ठीक है। आपको इसके थ्रू अब हम लेके जा रहे हैं कि कौन कौन से स्किल्स लर्न करना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास एक चीज़ आती है जो कि है लर्न द बेसिक्स, ठीक है। यहाँ पे लर्न बेसिक्स आप कर सकते हो, क्या हैं वो देख लेते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ अबाउट विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये टोटली जो है डिपेंड करती है विजुअल कम्युनिकेशन पे, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, टू कन्वे डिफरेंट मैसेजेस, यहाँ पे आपको डिफरेंट मैसेजेस कन्वे करेगी, ठीक है, टू स्पेसिफिक ऑडियंस भी इसमें आती है। बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल इन्वॉल्व हाउ दोज मैसेजेस आर रिप्रेजेंटेटेड, ठीक है। और ये भी मैटर करता है कि ये जो डिज़ाइन है, प्रिंसिपल हैं, इनमें इन्वॉल्व्स किस तरीके से हैं मैसेजेस और रिप्रेजेंट किस तरीके से हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो एक ऐसा बैनर बनवाना कि जिसमें आप बता सको कि ऑनलाइन स्कैम से किस तरह बचें, ठीक है। तो डिपेंड ये करता है कि आप उसको किस तरीके से बना रहे हो और आपका जो मैसेज है कि ऑनलाइन स्कैम से किस तरह बचें वो उस पोस्टर में काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंट हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने बनाया कुछ और चीज़ के लिए और वो दिख किसी और चीज़ के लिए रहा है, ठीक है। अब आता है ग्राफिक डिज़ाइनर नीड टू नो कलर थ्योरी, ठीक है। यहाँ पे कलर थ्योरी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है
ठीक है। कलर कम्बिनेशन आप सीख सकते हो, उसके भी कोर्सेज़ होते हैं, वो आप सीख सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो चीज़ अच्छी रहेगी। फिर आता है टाइपोग्राफी, ठीक है। कलर थ्योरी के साथ आपको टाइपोग्राफी सीखनी होगी किस तरीके से होती है। फिर यहाँ पे हाइचरी होती है, ठीक है। हाइचरी को भी आप लर्न कर सकते हो। फिर यहाँ पे कंपोजिशंस आती हैं, शेप्स आते हैं एंड लेआउट होते हैं। उसके बाद आता है हाउ दीज वर्क टुगेदर इन एन इमेज और वेबसाइट, ठीक है। किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करेंगी इमेज में और वेबसाइट पे, और पोस्टर टू एंगेज डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा आपको पता है पोस्टर्स होते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, तो वो भी मैनेज यहाँ पे इजीली हो जाएंगे। अब वही मैंने आपको जो बताया था कि आप किस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन सीख सकते हो, ठीक है, क्या तरीका होता है। तो यहाँ पे है लर्न कलर थ्योरी एंड इमेज फॉर्मेट्स विद यूसी बाउल्डर, ठीक है। यूसी बाउल्डर से आप सीख सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बाउल्डर है, ठीक है। वहाँ से आप सीख सकते हो ये इजीली। इसमें एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है, ठीक है। इसके अगर हम पॉइंट्स के बारे में बात करें, कलर थ्योरीज हैं, इमेज फॉर्मेट्स हैं और कोर्सेज हैं। नंबर 2 है बिल्ड योर स्किल्स विद ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। वन acquainted with the basic, you are ready to learn with the fun stuff. It is easy to build your skills with the wealth of online courses, ठीक है। वो यहाँ पे कह रहा है कि मतलब बेसिक चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, आप उनको अगर आप देख नहीं सकते, मतलब कि इतना टाइम नहीं है कि आप चीज़ों को देखो, तो आप जस्ट रीड करके इन्फॉर्मेशन गेट करके भी कर सकते हो। इट इज़ ईजी टू बिल्ड योर स्किल्स विद द वेल्थ ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज एंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू अस, ठीक है। अब यहाँ पे आता है हेयर आर सम कोर्सेज टू गेट यू स्टार्टेड, ठीक है। कॉल आर्ट्स आते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्पेशलाइजेशन, फिर आती है यूसी ब्रॉडर ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। आई थिंक ये इसके कोर्स के की पॉइंट्स होते हैं ना, क्या 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 याद कर लोगे, तो वो चीज़ बताई हुई है, ठीक है। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ठीक है। उसके बाद आता है कि इंटरेक्टिव आप कंप्यूटर ग्राफिक्स का लर्न कर सकते हो कि इंटरेक्टिव क्या होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स का, ठीक है। फिर आता है ब्रांडिंग द क्रिएटिव जर्नल स्पेशलाइजेशन, ठीक है, इसको आप कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे आता है सम गाइडेड प्रोजेक्ट्स टू बिल्ड स्पेसिफिक स्किल इन 2 आवर्स, ठीक है। अब ये क्या है वो देख लेते हैं। क्रिएट आई कैचिंग लोगोज यूजिंग कैनवा फॉर एन ई ब्रांड, ठीक है। आप आई कैचिंग लोगो बना सकते हो कैनवा को यूज़ करके किसी भी ब्रांड के लिए, ठीक है। हम देख लेते हैं। क्रिएट एनिमेटेड सोशल मीडिया पोस्ट यूजिंग कैनवा, ठीक है। आप क्रिएट कर सकते हो एनिमेटेड पोस्ट को, ठीक है। नंबर 3 पे आता है बिल्डिंग डिजिटल मीडिया यूजिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग पावर पॉइंट, ठीक है। आप एक डिजिटल मीडिया को बिल्ड कर सकते हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को यूज़ करते हुए। उसके बाद आता है क्रिएट प्रमोशनल वीडियो यूजिंग कैनवा, ठीक है। फिर आता है बिल्ड अ फ्री वेबसाइट विद द वर्डप्रेस, ठीक है। आप फिर एक फ्री वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए। आगे अब हमें वो बताते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग वर्सेस यूएक्स डिज़ाइन, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। एक होता है ग्राफिक डिज़ाइन और एक होता है यूएक्स डिज़ाइन, क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर ऑफन स्पेशलाइज इन ब्रांड सेंट्रिक वर्क डिज़ाइनिंग विजुअल एलिमेंट्स फॉर कंपनीज, ठीक है। ये सब चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं कंपनीज के लिए। दे यूज़ एडोब फोटोशॉप, ठीक है, वो फोटोशॉप यूज़ करते हैं, इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं एंड अदर डिज़ाइन टूल्स टू कन्वे मैसेजेस एंड आइडिया, ठीक है। अदर जो उनके होते हैं टूल्स वगैरह, काफ़ी ज़्यादा टूल्स होते हैं, उनको वो यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस यूएक्स डिज़ाइनर, ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है। और विद द प्रोडक्ट टर्म्स टू डिज़ाइनर यूज़ सेंट्रिक इंट्रैक्शन यूजिंग टूल्स लाइक फिग्मा। अब ये कुछ टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फिग्मा है, ठीक है, स्केच है एंड माइक्रो है। ये 3 टूल्स उन्होंने बताएं कि इनको यूज़ करके आप कर सकते हो। इन रिसेंट ईयर यूएक्स डिज़ाइन हैज़ गेन पॉपुलैरिटी एज वेल पेड कैरियर path and is expanding from just touch
finds to nearly every kind of organization. every kind of organization के लिए आप यूज़ कर सकते हो. read more UX design which is graphic design है. choosing the right career path, आप एक right career path को choose कर सकते हो. ओके नंबर 3 पे आता है मास्टर द इन्स एंड आउट्स ऑफ डिज़ाइन प्रोग्रामर. ठीक है, आप मास्टरिंग देख सकते हो इन्स एंड आउट जो डिज़ाइन प्रोग्रामर्स की है. टू ट्रूली लर्न ग्राफिक डिज़ाइन यू विल नीड टू बी प्रोफिशेंट इन ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर. ठीक है, आप प्रोफिशेंट बन सकते हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में. Most designers use Adobe Illustrator and Adobe Photoshop for majority of their work. ठीक है, majority of their work आप ले सकते हो, कर सकते हो. If you are just starting out or hoping dabbling in graphic design. ठीक है, अगर आप जस्ट अभी शुरू ही है आपका और आप होपिंग कर रहे हो कि आप इसमें डैबल कर सको, तो अब यहाँ पे कुछ आपको टूल्स मैं बताऊँगी जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे अगर आप एज अ बिगनर हो और डबल करना चाहते हो. कैनवा इज़ योर बेस्ट बेट. ठीक है, कैनवा आपके लिए एक अच्छा बेट साबित हो सकता है. बिल्ड मेनली फॉर द एवरेज पर्सन टू डिलीवर ब्यूटीफुल सोशल मीडिया पोस्ट. ठीक है, ये हर एक एवरेज पर्सन को ब्यूटीफुली डिलीवर करता है पोस्ट एंड रिव्यूज़. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बिल्डअप कर सकते हो बहुत ही ईजी वे में. ओके, अब देख लेते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है. डिज़ाइनर कैन बी pursue Canva to understand which type of aesthetics and design are trending. उसके थ्रू आप ये भी पता करवा सकते हो कि कौन से जो हैं टाइप्स एंड डिज़ाइन जो हैं वो अभी ट्रेंडिंग में है. ओके सो यहाँ पे आपको मैंने बताया एस्थेटिक आपको डिज़ाइन जो ट्रेंडिंग में है वो आप देख सकते हो, यहाँ से आइडिया ले सकते हो. एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर जो है यू विल वांट टू क्रिएट design from scratch on Adobe and bring them to life using the talents you have developed. ठीक है, अब जो भी आपके अंदर टैलेंट डेवलप होगा, जो भी थिंग्स डेवलप होंगी वो चीज़ आप लेके आ सकते हो. ठीक है, अब नंबर 4 यहाँ पे आता है. देख लेते हैं नंबर 4 क्या है. क्रिएटिव पोर्टफोलियो ऑफ प्रोजेक्ट्स. ठीक है, यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो पोर्टफोलियो. अब वो किस तरीके से क्रिएट होगा, ज़ाहिर सी बात है आपको प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो एक चाहिए होगा पोर्टफोलियो. ठीक है, किस तरीके से क्रिएट होगा वो देख लेते हैं. सिंस ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज सच अ विजुअल फील्ड, अ पोर्टफोलियो इज़ द बेस्ट वे टू डेमोन्स्ट्रेट टू पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स योर यूनिक स्किल्स एंड वर्क. ठीक है, यहाँ पे आपको यूनिक स्किल्स मिल सकते हैं और वर्क मिल सकता है. आफ्टर यू हैव मर्ज सम स्किल्स, ठीक है, यू मे वांट टू टेक ऑन प्रोजेक्ट्स हेयर एंड देयर टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो. ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई स्किल गेन भी कर लेते हो देन फर्दर आपको जो है वो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है. तो फ्रॉम द बिगनिंग जैसे आप लर्न कर रहे हो साथ साथ अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करो. तो ये टिप हमें यहाँ से मिलती है. अब नेक्स्ट टिप्स देखते हैं कौन कौन सी हैं. यहाँ पे वो कहता है इफ़ यू हैव अ ट्रबलिंग फाइंडिंग फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स. ठीक है, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है फाइंड आउट करने में तो आप अपना ओन बनाओ. ठीक है, आप अपना ओन कोई प्रोजेक्ट बनाओ और उस पर वर्क करो. अगर आपने सिर्फ पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, ज़ाहिर सी बात है इससे अर्निंग नहीं आएगी बट आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा. गिव योर सेल्फ अ प्रॉम्प्ट. अपने आप को काम दो सच एज क्रिएटिंग अ लोगो फॉर द हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी. स्टार्टअप विद द फोकस ऑन वेल बींग. ठीक है, इस तरीके के आप अपने आप को प्रॉम्प्ट दे सकते हो, अपने आप से काम आप जनरेट करवा सकते हो. ठीक है, छोटे छोटे टास्क देकर. एंड असिस्ट इन डिज़ाइनिंग अ सीरीज़ ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट. आप एक सीरीज़ डिज़ाइन कर सकते हो सोशल मीडिया पे फॉर द लॉन्च ऑफ द कॉस्मेटिक ब्रांड. ठीक है, कॉस्मेटिक ब्रांड्स के लिए. इफ़ योर पोर्टफोलियो यू विल वांट टू इंक्लूड द ब्रीफ द फाइनल डिज़ाइन एंड एनी पॉजिटिव फीडबैक यू रिसीव्ड. ठीक है, तो यहाँ पे आप एक पॉजिटिव फीडबैक भी ले सकते हो. टिप्स फॉर क्रिएटिंग एन इम्प्रेसिव पोर्टफोलियो. अब ये पोर्टफोलियो की टिप्स हैं वो भी देख लेते हैं हम. रेडी टू स्टार्ट बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो. तो यहाँ पे कुछ टिप्स हैं. नंबर 1 है शो योर बेस्ट वर्क. ठीक है, आपने जो भी अब तक लाइफ टाइम में बेस्ट वर्क किया है
उसको शो कर सकते हो। नंबर 2 पे आता है एक्सप्रेस योर पर्सनालिटी थ्रू योर डिज़ाइन। ठीक है, आपकी जैसी भी पर्सनालिटी है उसको एक्सप्रेस कर सकते हो थ्रू योर डिज़ाइन। नंबर 3 है डॉक्यूमेंट द इम्पैक्ट ऑफ योर डिज़ाइन सच एज इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस विद द रियल परसेंटेज एंड एनालिटिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे 5 नंबर पे आता है ग्रो योर नेटवर्क। अब वो किस तरीके से करोगे? एज अ बिल्डअप अ पोर्टफोलियो यू विल आल्सो वांट टू ग्रो योर नेटवर्क। ठीक है, ठीक है, कनेक्ट विद योर फॉलो डिज़ाइनर्स टू मीटअप्स। ठीक है, अब ऐसा कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे अच्छा कर रहे हैं आपकी फील्ड में होते हुए, तो उनसे आप मीटअप कर सकते हो और उनसे नेटवर्क बना सकते हो। मतलब उनको कह सकते हो कि मुझे आपके साथ काम करना है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, सर्च फॉर डिज़ाइन लीडर्स ऑन लिंक्डइन एंड आस्क फॉर इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू। थिंक ऑफ एन इंडस्ट्री यू मे लाइक टू फोकस ऑन such as non-profit organization or branding agency. To grow your personal brand, you might even think about creating content and sharing it on Instagram, Pinterest, or another platform. Graphic designer often develop a style or niche over the years, and you can land a job easier if companies can get a general idea of what your design will look like. ठीक है, अब यहाँ नंबर 6 पे आता है गेट सम वर्क एक्सपीरियंस, जो कि थोड़ा सा टफ भी होता है एज अ फ्रेशर। तो वो हम देख लेते हैं किस तरीके से हो सकता है ईजी। सो इट मे फील डिफ़िकल्ट टू लैंड योर फर्स्ट जॉब और कंसल्टिंग गिग। रिमेंबर दैट यू कैन वॉलंटरी टू और स्टार्ट विद एन इंटर्नशिप टू गेन मोर एक्सपीरियंस ऑन द जॉब। Fiverr and similarly freelance platform can connect you with the people willing to pay per gig for work like designing and reviews or presentation. This can be low stakes way to gain work experience. Network Networking also can help you against contract। ठीक है, और यस और आपका जो पोर्टफोलियो है वो बिल्ड करेगी नेटवर्किंग और कंटिन्यू करेगी आपकी स्किल्स में एडिंग और आपका एक्सपीरियंस। सो ऑलरेडी अभी हमारे पास काफ़ी स्टेप्स रहते हैं तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और ठीक होना चाहिए। सो गाइस आज की वीडियो को अपनी शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो ताकि आप लोगों को डेली हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। सो गाइस अपनी वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो लेट्स सी, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हम देखेंगे कि आप लोग किस तरीके से वीडियो एडिटिंग को लर्न कर सकते हो। चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। जो हमारा टॉपिक है वीडियो एडिटिंग, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं, उसके लिए मैं चली जाती हूँ अपने गूगल पर। ठीक है, और यहाँ पे अब हम टाइप कर लेते हैं हाउ टू लर्न वीडियो एडिटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से आप वीडियो एडिटिंग लर्न कर सकते हो। चीज़ें इंग्लिश में हैं लेकिन मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके बताऊँगी कि आया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेती हूँ। इसको मैंने ओपन कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप गाइड दी हुई है कि आप लोग किस तरीके से जो है वो वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो
यहाँ पे अब मैं वो गाइड पढ़ के आप लोगों को सुनाती हूँ, ठीक है। और लेट्स स्टार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है हाउ टू लर्न वीडियो एडिटिंग, टिप्स हैं फॉर कैरियर बिल्डिंग, ठीक है। जो चीज़ें हैं वो उन्होंने आपको टिप्स दिए हैं ताकि आप अपना कैरियर को बिल्ड कर सको। चलो अब देखते हैं। वीडियो एडिटिंग कैन बी फुलफिलिंग रोल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग, ठीक है। ये एक फुलफिलिंग रोल हो सकता है अगर आप इंटरेस्टेड हो वर्किंग में इन अ क्रिएटिव फील्ड, ठीक है। ये एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी करनी पड़ती है खुद से भी, ठीक है। अगर आप क्रिएटिव नहीं हो, अगर आपको मतलब ऐसा करना नहीं आता कि ये चीज़ ऐसे ज़्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है, कुछ एडिंग करनी नहीं आती, तो थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए। एंड कोलैबोरेट्स विद अदर्स स्कोर्स, ठीक है। कोलैबोरेट कर सकते हो अदर स्कोर से, इंडस्ट्री के साथ, ठीक है। ओके, तो कोलैबोरेट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं उधर। अब उसके बाद वो कहता है इफ़ यू आर अ बिगनर, ठीक है। अगर आप एक बिगनर हो और बिगनर लेवल पर हो, बिगनर वो होता है जिसको मतलब बिल्कुल भी ना समझ बूझ नहीं होती वीडियो एडिटिंग की। तो अगर आप उस लेवल पे हो तो अब हम देख लेते हैं। इट मे बी हेल्पफुल टू कंप्लीट कोर्सेज और इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग टू हार्नेस योर स्किल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। ये आपकी ट्रेनिंग है कि आपको जो है वो चीज़ों के बारे में हार्नेस मिले, आपके स्किल्स के बारे में, ठीक है। क्योंकि वीडियो एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स लगती हैं कि भाई काम इस तरह नहीं होना चाहिए, काम इस तरह होनी चाहिए। और मतलब जो आपका क्लाइंट होता है वो चाहता है कि वो जो आपसे वीडियो बनवा रहा है वो यूनिक हो, चेंज हो, ठीक है। अब दिन की अगर आप 2-3 वीडियो बना रहे हो, वो तीनों एक दूसरे से डिफरेंट हों और जो नेक्स्ट डे आप वीडियो बनाओगे वो भी उन सब से डिफरेंट हो, तो वो चीज़ थोड़ी उसमें टेक्निक्स आ जाती हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें आती हैं। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू लर्न वीडियो एडिटिंग कैन हेल्प यू प्रिपेयर फॉर अ कैरियर इन दिस फील्ड, ठीक है। आपको वीडियो एडिटिंग जब तक आप लर्न करोगे, ठीक है। बाज़-औक़ात बहुत लोगों को शौक़ होता है कि वो वीडियो एडिटिंग करें, लेकिन जब वो उसको लर्न करते हैं उनको पता चलता है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, तो वो अपना डिसीजन बदल देते हैं। यही वजह है कि आपको सबसे पहले तो ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि हर फील्ड हर बंदे के लिए नहीं होती। अगर आप उसमें अच्छा कर पा रहे हो या कर सकते हो देन आप उसमें जाओ, वरना अपने सर पे यूँ बोझ लेने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और आगे वो कहता है एक्सप्लोर योर टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट, ठीक है। ओके, वीडियो एडिटिंग का जो पाथ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसमें आपको लगती हैं, मिलती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप अंडरस्टैंड करना आपके लिए बेहतर है कि आप कितना क्रिएटिव होना है। और ये सारी चीज़ें अगर आपको अंडरस्टैंड है, आप अंडरस्टैंड करते हो कि जो है वो वीडियो एडिटिंग कितने टाइप्स की है, आप कितना टाइम दे सकते हो। कुछ चीज़ें होती हैं वीडियो एडिटिंग, कुछ मैं आपको बताती हूँ। फील्ड वीडियो एडिटिंग की ऐसी है जिसकी डिमांड बहुत है लेकिन पे इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ वीडियो एडिटिंग की फील्ड ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड तो इतनी नहीं है लेकिन उनकी जो जो पे है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, वो कहता है व्हाट स्किल्स डज वीडियो एडिटिंग रिक्वायर, ठीक है। अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो ऐसा कोई प्रीवियस स्किल है जो आपके पास होना चाहिए कि आपने इसको सीखना है। तो हम देख लेते हैं। Here are the few essential skills to focus on developing so you can succeed in this role, ठीक है। कुछ ऐसे essential skills हैं, मतलब एक होता है ना कि एक प्रॉपर स्किल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ्रीलांसर बनना है तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक स्किल चाहिए। वो राइटिंग का हो सकता है, वो आपकी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का हो सकता है। बट जब वीडियो एडिटिंग में आते हो एक एसेंशियल स्किल्स वो होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन है, ठीक है। आपको अगर कम्युनिकेशन ही नहीं आती तो आप कोई भी स्किल नहीं कर सकते, ठीक है।
तो अब आगे हम देख लेते हैं जो हमारे पास फर्स्ट एसेंशियल स्किल है जो कि इम्पोर्टेंट होता है वीडियो एडिटिंग में, वो है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इसका क्या लिंक है वीडियो एडिटिंग से, वो अब हम देखते हैं। सो वीडियो एडिटर्स टिपिकली हैव keen organizational skills as their role require them to be attentive to details। ठीक है, आपको जो डिटेल्स दी हैं, फॉर एग्जांपल आपका कस्टमर आया है, उसने कहा है कि आपने जो है ना वीडियो बनानी है, कॉम्बिनेशन आपने वाइट ब्लू येलो सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब आपको अटेंटिवली और बहुत ध्यान से वो डिटेल्स देखनी है। ठीक है, तो आपको वो कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा, वो वीडियो में वो कॉम्बिनेशन आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होता है, वीडियो अट्रैक्टिव लगती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं दीज इंडिविजुअल ऑफन हैव टू स्टोर वेरियस टाइप ऑफ मीडिया। ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल जो होते हैं वो चाहते हैं कि वो वेरियस टाइप ऑफ मीडिया जो है वो होल्ड कर लें। देखो, अब फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने कहा है कि भाई आपने बैकग्राउंड ना वाइट ब्लैक रखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो वाइट भी है, ब्लैक भी बैकग्राउंड है। और अब वीडियो आपने ख़ुद बनानी है तो उसके लिए जैसे कि ड्रामों में होता है, वो अगर एक्ट्रेस ने ग्रीन सूट पहना है तो वो पीछे थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि थोड़ी ग्रीनरी हो। ठीक है, घरों में या तो वास पड़े हों जिसमें फ्लावर्स वगैरह हों, तो इस तरीके की वो मीडिया कलेक्ट करते हैं। और अगर यही आप विदाउट कोई कंटेंट के ख़ुद का कंटेंट बना रहे हो जो कि हमें मीडिया की हेल्प से बनाना पड़ता है, तो उसमें आपको मल्टीपल ऐसे मीडियाज़ ढूंढने पड़ेंगे जो इस कलर कॉम्बिनेशन पे हों। और वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है फाइंडिंग कंटेंट और मटेरियल को फाइंड करना वीडियो एडिटिंग में थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे both secure and easily accessible, so they may many benefit for being able। ठीक है, अगर आपने जो उन्होंने बात कही, ठीक है, अगर आपने वो सही से सुनी है तो फिर आपके लिए मीडिया कलेक्ट करना आसान हो जाएगा। आपको पता होगा कि आपका टारगेट मीडिया आपको कहाँ मिल सकता है। वीडियो एडिटर आल्सो नीड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स टू इफेक्टिवली स्ट्रक्चर वेरियस शॉट इनटू कॉसिफ पीसेस। ठीक है, कॉसिफ पीसेस में वेरियस शॉट्स आपको होंगे। अब यहाँ पे आती है कम्युनिकेशन। ठीक है, देयर आर टिपिकली एबल टू प्रोड्यूस मीडिया दैट सक्सेसफुली कम्युनिकेट्स अ मैसेज टू द ऑडियंस। हैविंग एग्जैक्टली कम्युनिकेशन स्किल्स कैन हेल्प वीडियो एडिटर्स सर्व देयर क्लाइंट्स एंड एंगेज ऑडियंस मोर एफिशिएंटली। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी ऑडियंस को मोर एफिशिएंटली एंगेज कर सकते हो। ठीक है, रिलेटेड 10 कम्युनिकेशन स्किल्स लाइफ कैरियर की उन्होंने दी हुई हैं, तो वो आप जाके इंडेड कैरियर गाइड में जाके पढ़ सकते हो। अब हमारे पास दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्किल आता है, ठीक है, एसेंशियल स्किल, वो है क्रिएटिविटी, जो कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि आपको क्रिएटिविटी आनी चाहिए। तो यहाँ पे वो कहता है वीडियो एडिटर कैन बेनिफिट फॉर हैविंग एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली एंड कम अप विद यूनिक वेज टू अप्रोच देयर वर्क सिंस दे वर्क विद विजुअल मीडिया हैविंग नॉलेज ऑफ कंपोजिशन एंड डिज़ाइन। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिएटिविटी क्या है कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो काम करना है वो यूनिक वे में किस तरह हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको लिखने को कहा है किसी ने ऐसे, ठीक है, आपने ऐसे फ़ौरन स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो क्रिएटिव इंसान होगा वो पहले उसकी अच्छी सी हेडिंग देगा। ठीक है, फिर उसको स्टाइलिश वे में वो लिखेगा। ठीक है, 2-3 चीज़ें ऐड करेगा, जैसे कोटेशन होती है, वो सब चीज़ें वो उसमें ऐड करेगा। तो उसने क्या किया है, उसने अपनी क्रिएटिविटी की है, जो कि देखने में अच्छा लगेगा और उसको एक्स्ट्रा मार्क्स जो मिल जाएंगे। इसी तरह क्या होता है वीडियो एडिटिंग में, आपको फॉर एग्जांपल जस्ट एक फ़ोटोज़ की आपने वीडियो बनानी है, एक बंदे ने बना ली, दे दी, लेकिन जो क्रिएटिव इंसान होगा वो उसमें एनिमेशन ऐड करेगा, इफ़ेक्ट ऐड करेगा, पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें आपके काम को और अच्छा बनाती हैं और आपके क्लाइंट को काफ़ी ज़्यादा खुश करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं
कि सिंस दे वर्क विद विजुअल मीडिया हैविंग, ठीक है, ये हो गया। आपको डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए कि ये डिज़ाइन का क्या स्टैंडर्ड है। कुछ डिज़ाइन बहुत ज़्यादा चीप होते हैं, बहुत ज़्यादा आउट फैशन होते हैं, तो वो चीज़ आपको हेल्प आउट नहीं करती, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, म्यूज़िक वीडियो, मूवी ट्रेलर्स एंड टीवी कमर्शियल रिक्वायर वीडियो एडिटर्स टू यूज़ देयर क्रिएटिविटी स्किल्स, ठीक है। अब अक्सर ऐसा होगा कि आपके पास ना क्लाइंट्स आएंगे और वो कहेंगे हमें ऐड बनवानी है, ऐड में ये चीज़ें आपने बतानी है, लेकिन इस तरह से आपने उसको बनाना है कि मतलब अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। अब उसकी कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ वीडियो हैं, तो अब ये आपकी क्रिएटिविटी पे है कि आप उसको कितना क्रिएटिव करके जो है वो अच्छा बना सकते हो ताकि वो देखने में अच्छा लगे, ठीक है। ये चीज़ वो कहना चाह रहे हैं। और विजुअल एंगेज कंटेंट एंड गेन्स द व्यूअर अटेंशन, ठीक है। वही बात कि जो आपके व्यूअर्स हैं उनकी अटेंशन ग्रैब करे, ठीक है। अब तीसरा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल स्किल आता है वो है कोलैबोरेशन, ठीक है। अब कोलैबोरेशन क्या होती है उसको हम देख लेते हैं। Video editors commonly work alongside directors, producer, cinematographers, sound designer, and others who work with media and communication in their roles, ठीक है। ऐसे लोग जो वर्क करते हैं मीडिया के साथ और उनकी कम्युनिकेशन रोल्स होते हैं मीडिया के साथ। Being able to work in a group, accept feedback, and take other perspective into consideration can help them succeed, ठीक है। और अगर अगर आप लोगों से कहते हो कि भाई तुमने मुझसे काम करवाया तो मुझे फीडबैक दो, ठीक है, मेरा काम किस तरह का था, और अदर लोगों के प्रोस्पेक्टिव आप लेते हो। फॉर एग्जांपल, आपने एक वीडियो बनाया, ठीक है, आपने अपने फ्रेंड्स को दिखाया, उनमें से 2 लोग कह रहे हैं कि अच्छा है और 3 लोग कह रहे हैं कि नहीं अच्छा, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ी है, ठीक है। आप उनके मुंह पर ना कहो, लेकिन आप जब खुद देखोगे कि कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग डिसलाइक कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट करेगी और आप उस पर वर्क करोगे, ठीक है। इस वजह से लोगों के प्रोस्पेक्टिव देखने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनको सच मान के बैठ जाओ। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि आपकी चीज़ में ख़राबी है तो डीमोटिवेट नहीं होना, बजाय इसके आप उसको ठीक करो, ओके। नाउ हमारे पास फोर्थ वन जो एसेंशियल स्किल आता है वो है टेक्निकल, ठीक है। और आपको पता है कि आप जब ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे होते हो डिवाइसेस के साथ तो आपको टेक्निकल होना पड़ता है। अब वो कहता है कि वीडियो एडिटिंग इज़ अ हाईली टेक्निकल प्रोसेस, ठीक है, दैट इंडिविजुअली कंप्लीट बाय यूजिंग स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर, ठीक है। वीडियो एडिटिंग के लिए हमेशा एक अलग कंप्यूटर्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि हैवी फाइल होती है। बाय यूजिंग स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर डिफरेंट होंगे, उनके सॉफ्टवेयर डिफरेंट होंगे। With this, video editor can benefit from having a firm grasp on how to operate the various tools available through these platforms, such as motion graphics, animation, color correction, and audio mixing, ठीक है। कभी कभार वीडियो बहुत अच्छी बनी होती है, लेकिन क्या होता है कि उसका जो कलर करेक्शन होता है वो ठीक नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल, बहुत या तो येलो स्क्रीन आ रही है या तो बहुत ब्लू स्क्रीन आ रही है, ठीक है, कलरफुल स्क्रीन नहीं होती, वो कलर करेक्शन होता है। और हर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आप देखोगे कलर करेक्शन का आपको ऑप्शन मिलेगा, उससे क्या होता है कि कलर्स इन्हेंस हो जाते हैं। और ऑडियो मिक्सिंग, ठीक है, आप बोल रहे हो वो अलग सुनाई दे रहा है, म्यूज़िक अलग सुनाई दे रहा है, तो ये चीज़ें आप जब तक ऑडियो को मिक्स नहीं करते, बैलेंस नहीं करते, तो वो नहीं अच्छा लगता। आप बोल रहे हो पीछे से म्यूज़िक इतना तेज़ है, या आप चुप कर गए हो फिर भी म्यूज़िक बहुत स्लो है। आपने देखा होगा कि जब भी वीडियो में थोड़ा गैप आता है तो म्यूज़िक तेज़ हो जाता है, वो सारी होती ही मिक्सिंग है। अब आती है अडेप्टबिलिटी, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट एसेंशियल स्टेप है वो है अडेप्टबिलिटी। अब देख लेते हैं। Video editors typically work on behalf of clients or in collaboration with cinematographers and help them execute their vision for the project, ठीक है।
वो अपने विजन को अपने प्रोजेक्ट के लिए एग्जीक्यूट करते हैं। देयर फॉर वीडियो एडिटर्स में बेनिफिट फॉर हैविंग हाई कैपेसिटी फॉर एडोबिलिटी। आपके लिए अगर आप हाई कैपेसिटी चाहते हो ना वीडियो एडिटिंग में, तो आपके पास एडोबिलिटी आनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ चेंज होती रहती है। एक ज़माना था जब ये कह लो कि फ़ोटोज़ और छोटी छोटी क्लिप्स का कॉम्बिनेशन बहुत चलता था। अब ज़माना एनिमेशन का है, ठीक है। तो आपको एडॉप्ट करना आना चाहिए कि अच्छा ये चीज़ चली गई है, इस चीज़ को मैं छोड़ के नई चीज़ सीखूं। तो ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप वीडियो एडिटिंग में आते हो, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। क्विक आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए एंड ओपन्स टू चेंज। और आप हर वक्त चेंज रहने के लिए तैयार हो कि ये चीज़ नहीं हो रही, ठीक है, हम इसको सीख लेते हैं और चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आता है हाउ टू लर्न वीडियो एडिटिंग, ठीक है। तो when many prospective video editors pursue communication degrees to develop their skills through formal education, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्या आप समझ सको कि ऑप्शंस क्या लिखे हुए हैं। यू कैन फाइंड आउट हाउ टू लर्न वीडियो एडिटिंग थ्रू सेल्फ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। कभी कभार आपकी जो सेल्फ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप जो खुद को गाइड कर रहे होते हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट आपको करता है, ठीक है। This process may require a significant commitment of time and effort depending on your current skill level and whether you have any experience in this field. Here step by step guide to follow to learn video editing, ठीक है। सबसे पहले है मेक श्योर योर कंप्यूटर हार्डवेयर कैन हैंडल वीडियो एडिटिंग, ठीक है। आपको जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो हैंडल कर सके वीडियो एडिटिंग को। बिफोर यू कैन बिगिन एडिटिंग रिसर्च सिस्टम रिक्वायरमेंट्स and compare your computer specification regarding its storage and processing capacity to ensure you have a sufficient setup. For example, you may require a high-speed processor to edit heavy files quickly, ठीक है। आपके पास तो एक हाई प्रोसेसर होना चाहिए, क्योंकि वीडियो एडिटिंग की फाइल्स हमेशा बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, ठीक है। ओके आगे आता है रनिंग एंड प्लेबैक्स अ लार्ज SSD और हाई PRM HD फॉर SM asset storage. If your computer is not capable of video editing, you can look into purchasing additional equipment, ठीक है। अगर आपका PC वगैरह आपको इजाज़त नहीं दे रहा कि भाई वीडियो एडिटिंग सही से नहीं हो रही, आप मशीन को चेंज कर सकते हो, क्योंकि डिपेंड करता है मशीन पे कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं। ओके गाइस, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को समझ आया होगा कि भाई वीडियो एडिटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से आप सीख सकते हो। सो गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आप लोगों को कितनी इस चीज़ की समझ आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देख ये पैर ते कहीं ना मारे, मेरे को जल्दी हालात लग दी भैया यार पूरी रख हट इथे तक इथे बात खड़ा ला के बस एकरा में क्या ना क्या खड्डा डाला भरा हुआ है, टीसी टेबल पानी का रास्ता दे हुआ ऐसे हम पई जो है वो क्या यूथी भी पई है क्या अम्मी देखे भरा से तो पानी का रास्ता दे हुआ देखे इथों करा इथों कर मैं गांध हटा में जक का पानी आवे सी ये वाला देख पोली दा यो पुत्र गांध हटा में जक का पानी आवे सी डाला ए गरी जे पाए पे जिका इदु ऊंची ओ नाली ऊंची है पाए पे जिका तो पाए करी दे इदु बंद थी गयो इदु बंद थी गयो ए मिट्टी केतलों का जना पेंते इथे टुक्का दे थे झिकी करके दिखो टुका ना देवे बेहतर या खाली कट टुक्का दे रही सीधी काट स्टार्ट करे ये काट छोड़ेगा पानी निकल वैसे इथो इथा तक चल पे पास पूरा भरा खड़ा कोई बतला दे
पैंप ना कढो बिया पैंप पिया हो तो वो पूछ दो उड़े नहीं लग गया पे वो काट दई दही रिजल्ट चेक करवाई दू देख कल 12% से बारिशें जुआ होती उतना आंदा पे कहीं ना कहीं हो करे सी क्या पैसे लाते पैसे लाते पैसे लाते हैं शदा दी खास यही वैसे ही देगा बच्चे सो हां प्लाट हैं हैं हां प्लाट केरा यो शेदे को जरा महंगा की देवे महंगा से देना भी ना बिठा दे क्या नहीं महंगा महंगा उठाई तो सही वन तो देख कोठा बनया कने कोठे को क्या से कोठे क्या से उधर रेट ही नहीं चलता पे सामने अस्पताल दे है सामने अस्पताल दे कल रास्ते में और त्यावे खाटोण दे को पोली यकी नाली सफा करे ना पई उड़े मां पैर ते लगे ही को ठेला कमाने वाला जवान है आम बंदा है 500 घेरे खाट ने यका और छेला तो चल वे मैं खटे रही तो पकड़ा और खाड़ा चा खा इधर का हां इधर ही तो पैम दे बराबर का जेदा पैम होवे ओ लड़िया पेनी पुन्नाल दे वारेस कल रास्ते में है नहीं मां हाँ ना काट सहे देख सुन तो दुनाली देख पता सही खाटे वाला यो करे से वो चीज करे ऊंची वाला मिट्टी खर दिए नहीं कर दे वाला लोड वैसी बात ए चबल दा पुत्र है सियाना दका इतना दे पैसे देना है वीजा किंदा है वीजा घेन के दे हिंदा पे बोला केन की देसे हिंद की दस पता है कूड़ है सच है केन की वो तो सेल पार्टी के दे वो मार क्या मारा इथा ही सेल दोते मारा पे पर निकली वे छेड़ी है थोड़ा चावा वाह वे छेड़िया थोड़ा पक्की हो भी सीमेंट सीमेंट ना लगी खड़ी है वाली ते सेम ते खड़ी थी निकली वैसी सीमेंट ना लगी तो लहा गई तू करे किन निकाल उमर शहजादा और है छुआर है केरा अमान है ही जो एक बंदा तेरा यार काहे की क्या होया जरा ना होगा यके पागल है दूसरा पहले दुआला करूंगा क्या सूरत हाल है मैं तो कहूं ना पूरा चढ़ा होता है खा रहे बिना बुथन ठीक है पकड़ना भाई मां को डोडी ठिया अबे कैमरे सारे चाह खड़े ही वे हैं ये चाह खड़े क्या गाना भाई चंबल तो बोले ही चाह कंटी तनी भी क्या ना उम्मीद है कि काट दियो क्या ना करते अच्छा ये तो ठीक किया है फिर ऐसा हो गया मेरा आपके अबे वहाँ छेड़िया थोड़ा चाहिए और थोड़ा चाहना है ले चाचा वाला छेड़ी थोड़ा चले ग्राम रे सदिया छोटे को काम करवा क्यों है वारिस को कुनाल स्वामी उगा पूजी कह रही हाले ताकि उगा हाले पूजी कह रही कुनाला उठाई जी खड़ा ते गए
सिर मारा सिर सेल रख ते बड़ी सेल नाल ठोका दे अबे हैं किथा इन तो परतो होए। आसे। हाँ एडा ही बल्लिया होए ये ही है पैंप माया रास्ता नहीं पे हाँ करास है और जिथा खड़े ही लगे कर अबे सी सिला ना कर जरा यो खरा केंद्र कर ना तीन तो आसी चलो वो सेल को बराबर कर जा वो सेल को बराबर कर जा एक दो तीन चार पाँच छह आसी यार ये जिता के ने पुरानी गला बांधिया करे थे पुनले हाँ 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 वो एक सेल है ठीक तुम्हारी हाँ 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 उधर पर हो मार पता चालू है थी मार हट गई है यक्ति हट गई है क्रेन को सडू हाँ हली हली है चलो तू मार हाँ तू मार दीवार हल्दी है वे तू हल्दी पागल हल्दी खड़ी 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 एक मिनट आवड़े खड़ी तू मैं मरे सा चल तू और मार कैसे रखते नाल वाल मार तुम्हार साउथ इंडिया ले जाता है यार जानी चिक्की आ सी जरी ओके दी रिपोर्ट है उडू खटनी पोसी जरी नाली दे बराबर करते जिक्की करी सी तले वाली सेल पटी सी हाँ हाँ जिक्की करनी पोसी एक सेल घर है ना एक सेल करनी काज पोसी ना ला दिए अपने शरादी रे साइड डालिए ना शरादी रे साइड डालिए निकल बुल्ला थी वैसे बुला नहीं थे ना कलमी से लासाने जाने कल वाला अगर ये सब कढ़े सुनो वाले ढाई पहुंची ये वाला एक रास समझ ना गाँव पानी वाला एक भंडार है सारे साला खाना में बैठा चाची बहुत की बोली थी निकल गई रात दोबारा ते कौन पे पता लगदा है ये कल मैंने दसाया यार हीट से बुझी हम्म वो छोटी सीरीज और भेज दी
कौन मारा पूरा ये जाहि जो तलाक दे दी वाल बिलावड़ा फायदा को हम वाला बिलाए की चाहता नहीं थी खट्टी खादी नहीं थी वाला होने लाई वाली बिले थी चा हां दशम हमें दाद भारी गिर तू तेरे एक काम सीधा रिक्त दू थापित रोड गई है ठीक है यो कर तले जरी खाटते तले जरी नाली खाटते उनके बराबर करते वाल पता लगे दू शैतान तो नहीं आया खड़ा दस्तर खां सारा को चाह दे कोठी अच पेनो चमचा भी उन्हें आ जाए चमचा ही चाह देवे आ उन्हें जानी चमचा हां ये पानी भी डाल जाना और मेरे को ऊँडी आके अब वो लाछन संख्या थी ते मैं के चाह देनी मैं आप वाल जरी ना यो थईया ते ना दस्तर खां ही चाह दे सारा को चमचा ही ओ चावण जो आया खड़े यार उन्हें नहीं भी भेजे अल्लाह दी कसम और से 10 नंबर लिखवा दे भेज देना नंबर लिखवा दे भेज देना तले में चलने के लिए उतली बांधी का जा आओ इदो होनी दो कटने चल नहीं आ रही अल्लाह दी ये चल नहीं करनी है उमल नशा पीती खड़ा मैं तो वो आके चल नहीं कर होड़ ही दो ते साइड अप करो को पानी कहना आसी ऊंची है कहना चढ़सी पानी तलवी निकलसी छेड़िया थोड़ा चाहते हुंदे नाल काट गई सी कहीं चाहती गयो कितनी मिनट दी है 13 मिनट दी बन गई है बस काट छोड़ी कोई ना 15 मिनट से बड़ा 3 मिनट आ वाला जुलूम मैंने थे 15 मिनट दी बन वैसे कई चा कल रास्ते में जो मिल गया आज का व्लॉग मजेदार होने वाला है तू क्या चप्पल दाप रही चावड़े ऊंचे चेरे नहीं बहुत बढ़िया है तो वो बदन में को हेलो गाइस हाँ बात पट्टी बाचा एक चाबे दे काम चेक कर आई हुई है शाखा कड्डी खणी पानी वो निकले था करे ऊंची करू ता लाली केरी कोई ना तू ही नाली निकल गई सी एक सेल कढण में लेकिन मैं पकड़ शदादा क्या आज काम का आज लगा दई तो ब्याह कौन ओए कुहाड़ी है तुम्हारे घर क्या है क्या चीज भाई है तुम्हारे घर के जा है तो की चार है तब तलवी ना करनी है पानी ना लोनी बिठू सेल दबा रही था सिल ने दबा रही थी लगता है पिया मेरे को पहले उतली सेल कार्ड वाल डाल लिया पट्टी भाई ए तलवी हाजिया सेल कार्ड में करो ये सेल कढी सी दवा हां ये सेल ये उस्ताद जी डू डबल वार है
ये चाय कर पूरी चाय पे काम ना करवा चाबा क्या बनी हटा भाजा सकना हाँ चाबा काम ते वेंदा भाई आप देख दूजी दफा दी हाथ त्रोड़ गया ना ना जोर मरेसी हूँ हमें को नहीं लगता नहीं निकाल मरेसी क्या नहीं चा सो जी यही कहना वो भी खेल को क्यों मरे ना वो सेल चौदी हिक्की जा हाथ ते नहीं खड़ती पई तो जोर मरे थे आई हाँ ए सही आदि मुकाला तेरा सेल त्रुट गया मुकाला ओ त्रोड़ नहीं है वो त्रुट गई है ये दिखी रहे जरी काम काज है वदी है ये चागेन तो या दिखी छेड़ी का काम करेंदी वदी सारा एक तलु ही बात हां नहीं ना कोई पुनाल चुप कर जावा चुप कर वाह गाला ही ना मार तलु मरे से तरे फास वैसी ना ओ ई में देखी ओ उते थी जासी को जे जहन है ना असरी के दे तेरा जहर नहीं फंस दे देगी जी अंदर पानी ऐसे लूटे थी नहीं जासी ओ जी ये मेरे जहन मुताबिक सही निकल लीजिए चाबा तो कुत्ती शायद तो की चाय किथे खट्टी रख दे खुडी ते रख दे अब उछले तेरा हो वैसे परवान पट गया से लिया तो तले मिट्टी तो नहीं कि डुबाए बेटा उठू मिट्टी है नहीं तलू मिट्टी है वो जो वह हाथ नाल खदौड़ी चा बस आओ देख पुठे काम देख वह समझाया नहीं भी हमसाया द्वारा समझाया टक्का नहीं भी तू ओरे तो मचूता झाल मिटो कुरुरे ए बेच कहीं लथा वेशा बेच लकड़ी लथा वेशा मिठो वजूद नहीं जलेदा भैया कैमरामैन कौन है मुजाहिद चाबे के साथ चाबा गाल करे ना करे पर देख गिन हवा छल अरे चुप कर खाड़ी ठीक है लोहे की दी छेणी बड़मई में आपड़ी लोहे दी घट खड़ा कहीं पता ना लगे चाबा निकल गई क्या हाल है दर्द निकल गया बाहों दा इतना ना मार इतना सट क्या ना लग दी भाई उते करे इथे ही मार हाँ मिठू मार सेल मार उडू अब हुन बलवा सिस्टम करेंदा पिया चल चा मिठू चा आए क्या करती पई इथा सिला पूरे पैम कड्ढे पैर तले पिया रहा ना कड्ढे बई को देख पानी एक लोड़ी पे आगे पानी नहीं वेंदा तो लील की थी वजह नहीं भी थल्ले फाश ला दो ना तलवी से ली निकलनी पोसी नाली को ऊंची ऊंची करेंगे भाई ठीक है
नाली कुछ पट तो ऊंची करो क्या ना हाँ मिट्टू क्या है? ठीक है पले दे मार चाबा इससे बड़ा कि चाबा हो सकता है देखें चाबा चाबा किधर देख देखें हाँ ये तो बड़ा कि चाबा थी सकते हैं चाबा 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 सिला ला तो पानी वञा रहे सिला जिमें लग्या पे ला ते में पानी वञा रहे होता है ना हाँ फिट कर सिला फिट कर फिर करना जी तो ये ना पटते वाला उते उते पैर दा जोर दे देवी ये ला इते उते पैर दा जोर दे यही में चली ना कुलतार छा मसात कमाना पे हैं मसात में क्यों ना कमाना पे ये मिट्टी पाछोड़ मिट्टी 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 पाछोड़ चाबा पानी निकल गया हो भाई दावे सी दौड़ सी शरादी पानी आयो रुकण वाली छाए क्या नहीं छुआ ठीक है मशवरा अपने को रखो चुप कर खड़ा हाली तू चुप कर खड़ सही से नाल बेया दिमाग खराब कराना आ गई है तू होता तो नहीं वेंदा ही ना एक घर दी बुहारी चलेंदी बस आखदी मैं पूरा काम करे मां करते रह वेंदी है मेरी माँ क्यों करे मेरी माँ अपना काम नहीं करेंदी तो क्या चाबा उते देख चाबा पूरी तरीके से ही नजर दा पीने साफ साफ ये कट छोड़े शतूत कुआ 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 का कुआ पड़ा पहले बालो आए बालो ना चोरी चाक इंसान डबल मेहनत करवे नहीं पुनाल कॉल जैसी पुनाल हो तो मेरे को पता है बारो वाला वो मेरे को नजर दी कड़ी है पुली में ना पानी आया ओए बन खोल गए लोड दे इधर पहाड़ है वहीं दी ये पहाड़ तोड़ छोड़ ये काट छोड़ो मुंडू काट छोड़ एक टोक छोड़ यार थारे ते भैया पका दे पहले कैसे कटी कड़िया दे पास ही पानी ये पैते वाला अपने आप होती है वैसे उतनी कला से इतना कर जेरी सेल है ना वो काम खराब की दिया ना शरादी पानी आए या मैदान छुड़ेंदा पे हमारा हुन इन जाले पानी ज्यादा छोड़ देते सतलुज छोटे ला किवें खेलदे आसे पुंडे
तू कुत्ता होना मैं पुंडी तेरी वीडियो मुकम्मल थी गई कितनी मिनट दी भला तरी दी 3 दी मुकम्मल थी गई मेरी 3 मिनट रहने पे मेरी वीडियो तो again मेरी वाली 31 मिनट थी दी ऐसे तब अब काटी छोड़ी मैं कट्टी गया नहीं खुद ब खुद बनी है ये पानी ये कोई सेल मार पुंडे और पानी आए अरे दार है साइडू नारे मारी पे तू डुवाल लाई ए हटाओ बे तो पानी बद्धा करे तो पानी आए काट गिनो सिला सिल्ला को क्यों ऊंचा रखेंगे सिला सही रखे थे पागल तो कहन है कड्ढो सिल्ला अरे ये चाची ये क्या ना है ये जा पट्टी सी ये जा बिले सी आप यहाँ पानी भइदा वे नहीं वेदा याद ही होता नहीं कहने में सी सेल निकल सी सिल्ला निकल से नहीं ऊपर छूटो हाँ कट हाँ जोर लगा पता चले शहजादी रे मुंड को सटेंदा पे देख हाँ खड़ के ओडे चलो हदा पता चले हुन पुनली तो वाला वञा एक चक्कर ई ना भाई इन दो पार कयो ती त्रुटि वे थी ए थई